to discuss and take the decision on option for RGA and access road FSA. Now, we are placing whatever the facts are there. Bakshi Sahab has come. And he will be a better person to throw light on the what is the issue. For last 10 years, we are going round and round for NOC. Some people laugh, but this is the fact. And they also have gone. Those people laugh, they also have gone times. Some on the alternately, ye ja rahe, ho ja rahe, hum ja rahe. You have come to this agenda. And even after, I am telling, I may be wrong. I am not saying. Even after getting NOC, it is a process. It's not that NOC मिल गया, हो गया तो. There is a process. And it will consume more time because it will go to the government authority and that will consume more time. I am not saying, I am not discouraging people, we will continue. But as an option, we are thinking of alternative. This cannot go endlessly, no? लाएगा कब 10 साल तो चला गया और कोई 10 साल नहीं डालने का तो बिल्डिंग क्या पोजीशन है आप सब लोग जानते हैं ये सफरिंग है सो व्हाट वी हैव मैनेजिंग कमिटी थॉट इट एंड खास करके इनसे डिस्कस करके वी डिस्कस विद द डेवलपर he said there is only one option we'll do it under 20B 20B was not existing 2 years back it was in the dormant situation 2020 2024 it came in a revised form if I am wrong you correct me it came in a revised form you people started opting for it then developer said it was not an option earlier but now it is there we can exercise that option we said what are the modalities you give us a formal proposal that you know you have discussed with developer directly we always give chance to you to discuss directly we don't restrict with the managing committee we go beyond that and we say that you also discuss with the developer and this we have been doing not first time even in the past also we have done this we have given direct negotiation or discussion with the developer whatever you have got place it before you that we have done in future also we will do it we are not saying that not do. We will do it despite some people say or label us we will do it okay anyway so we will go to that agenda now yeah only thing is that now the main agenda is limited to that is restricted to the utilization of that scheme for only RG and access road now our RG is 848 plus access road is 93 it comes to 83 it comes to 891 so right 891 848 at 83 no 931 it comes to 931 so for that purpose restricted because you don't want more density the moment you open the floodgates for that 2024 it will be at par with 33.9 and 33.11 never want it yeah people know that we do not want because we are going to stay here so we want our family also to get a better life and that's why we can't bring that total density so now I am requesting Bakshi Sahab to throw light on this what are the modalities how it works we have already heard developer and we have circulated that yeah we have already circulated it is a one-page document we have only said what is the loss of TDR or RG how they are going to do what is the area what is the shortfall and what is we are going to exploit that whatever remaining is not going beyond that okay नमस्कार मैं लेट आया हूँ मेरे फैमिली में कुछ मेडिकल रीजन हो गया था उसके लिए आपको जो इनकन्वीनियंस हुआ आपको माफी मानता हूँ सॉरी इट वॉज नॉट मेडिकल इमरजेंसी बट इट वॉज अर्जेंसी तो करना ही आई कुड नॉट कम आउट ऑफ इट आई एम सॉरी बट करना पड़ा ये जो भी एक प्रोसेस है वापस एक बार लास्ट टाइम डेवलपर था कुछ ये रेगुलेशन के बारे में बात हुआ मैं वापस रन थ्रू करता हूँ एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर है दोनों में क्या फर्क है पहला ऑफर जो था वो 6811 जो अपना टोटल एरिया इंक्लूसिव ऑफ आरजी उसके ऊपर 2.5 FSI मिलेगा ये कैलकुलेशन पे ये ओरिजिनल ऑफर था उसमें जो रेगुलेशन यूज किया था वो DCR 30A टेबल 12 मतलब TDR
अलॉन्ग विथ 33(7)B, जिसको कन्वेंशनली लोग बोलने के लिए 33(7)B का प्रपोजल ऐसा बोलते हैं। ये ओरिजिनल ऑफर था। अभी क्या हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कुछ 5-6 महीना हुआ है, डेवलपर से भी हम लोग ने उस दिन सुन के लिया, अपने भी कुछ कमिटी मेंबर से भी सुना कि ये आरजी का है, उसका एनओसी के लिए उन्होंने भी एफर्ट किया था। बट अगर ये चीज से बाहर आना है कि अगर एनओसी नहीं अवेलेबल हो रहा है या एनओसी को डिले हो रहा है, तो अपने हाथ में क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट तो आगे जाना जरूरी है। तो उसके लिए 3320B ये कंसेप्ट वापस एक बार रिवाइज करके अक्टूबर में आया हुआ है। अभी यहाँ एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3320B जो यूज हो रहा है ये टॉपअप है। 3320B जो यूज होने वाला है वो टॉपअप है। ये स्कीम का जो बेस है, सी ओरिजिनली जो हमारा ओरिजिनल अप्रूवल था प्रोजेक्ट का, वो 33(7)B का जो था वो टीडीआर बेस था। 1 FSI अपने प्लॉट का, 1 FSI टीडीआर फॉर्म का और 0.5 FSI बीएमसी को प्रीमियम देने के बाद, दैट इज 2.5 FSI। और ये जो 2.5 FSI अवेलेबल हो रहा था वो पूरा का पूरा 6,811 स्क्वायर मीटर पे एप्लीकेबल हो रहा था। ये बेसिक स्कीम था। अगर आज ऐसा हम लोग समझते हैं कि हमें आरजी के ऊपर एफएसआई नहीं मिल रहा है, आरजी का एनओसी नहीं मिल रहा है, एफएसआई नहीं मिल रहा है, तो जो 6811 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है वो अबाउट वॉट एवर दैट 931 स्क्वायर मीटर से रिड्यूस होगा, समवेयर 5,800 5,900 आएगा। तो ये 5,800 5,900 ये जो कुछ फिगर बन रही है उसके ऊपर पहले जैसा ही 2.5 FSI 35% फंजिबल या DCR 33B एप्लीकेबल होगा। तो वो शुरुआत पहली होती है कि यहाँ हमें 33(7)B है, वो एप्लीकेबल जैसा पहले था वैसा ही हुआ, लेकिन अपना प्लॉट एरिया 931 स्क्वायर मीटर से घट गया। ये एक सर्टन लॉस हुआ है प्रोजेक्ट में, तो उसको कॉम्पेंसेट कैसा करें? तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक एडिशनल FSI ले रहे हैं, वो टॉपअप FSI है, वो है 3320B के फॉर्म में। अब ये जो 3320B है ये अक्टूबर महीने में रिवाइज होके आया और उसके बाद यूटिलाइजेशन उसका शुरू भी हुआ है। मेरे खुद का एक प्रोजेक्ट है कांदिवली वेस्ट पे पोईसर जिमखाना के इधर, जहाँ ये 3320B एड ऑन टॉपअप ऐसा यूज करवा के अप्रूवल भी हुआ, सीसी भी हुआ और अभी ये प्रोजेक्ट क्लीन लेवल पे फर्दर सीसी पे आया हुआ है। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है। अब ये जो FSI एक्स्ट्रा मिलता है वो PMC ऐसा ही नहीं रहती है, उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। ये नॉर्म्स क्या है? जो एरिया 3320B में एक्स्ट्रा लेना है उसका कैपिंग डिफाइन किया 4 FSI, पर हम लोग यहाँ 4 FSI नहीं सोच रहे, क्योंकि 4 FSI तक जाना चाहेंगे तो सोसाइटी में बहुत डेंसिटी बढ़ेगी, बहुत नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ेंगे, जो नहीं करना है। तो जो टॉपअप करना है, ये टॉपअप का कैलकुलेशन का बेस कैसा रहता है कि अगर ये प्रोजेक्ट 33(7)B ओरिजिनली 6,811 स्क्वायर मीटर पे किया होता था, डेवलपर को एक्सपेंसेस के ऊपर क्या ROI मिल सकता था, और सिमिलर ROI अगर ये लेना है प्लॉट रिड्यूस होने के बाद तो कितना एडिशनल कंजम्पशन लेना पड़ेगा। तो डेवलपर ने जो एक समझाया था उस दिन, उसके हिसाब से अगर वर्किंग देखते हैं तो अबाउट 6,000 स्क्वायर मीटर का एडिशनल FSI अगर दिया जाता है 3320B में, तो ये कंसीडर करने के लिए 5,000 6,000 जो एक फिगर का हम लोग बात करते हैं, एक्चुअल नंबर्स में कुछ टाइम बाद आएंगे, तो वो नंबर का जो डिवीजन है वो 50% टू BMC 50% टू प्रोजेक्ट होता है। उसका मतलब क्या, ये FSI जो हम लोग बात कर रहे हैं 3320B का, वो ऐसा कैसे फ्री में नहीं मिला है, वो BMC के साथ शेयर करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ PAP। मतलब क्या हुआ, डेवलपर को एक जो समझो अगर हम लोग बात करते हैं 5,000 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा एरिया कंज्यूम करने का डिसाइड करते हैं एक नंबर से, तो 5,000 स्क्वायर मीटर का 2 डिवीजन होगा, 2,500 टू द प्रोजेक्ट, 2,500 टू द BMC। तो BMC को जो 2,500 स्क्वायर मीटर का एरिया देना है, उसके लिए एक PAP के यूनिट 300 फुट के यूनिट दूसरे कौन से प्रोजेक्ट में खरीदने होते हैं। ये यूनिट दूसरे प्रोजेक्ट में खरीदे जाएंगे, उसका रेगुलर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो कुछ है वैसा डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। अपने प्रोजेक्ट में जो यूनिट्स इनिशियली दिखाए जाते हैं उसके साथ में वो कन्वर्ट होगा, ये यूनिट्स BMC को उधर दूसरे प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे। BMC का जो नॉर्म है एडजॉइनिंग वार्ड या सेम वार्ड, वहाँ ये प्रोजेक्ट के यूनिट्स दिए जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ सोसाइटी और सिर्फ सेल कॉम्पोनेंट, ऐसा ये कॉम्बिनेशन बना रहता है। अभी बात यहाँ ऐसी आती है
कि मार्केट में ये जो यूनिट्स मिलते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जस्ट फ्रेश प्रोजेक्ट वहाँ शुरुआत वही मिलते हैं, या कोई प्रोजेक्ट थोड़ा आगे गया हुआ है, एक आध साल अपने प्रोजेक्ट से आगे है, वहाँ के भी यूनिट्स मिलते हैं। उसके हिसाब से ऑब्वियसली उनका रेट भी बदलता रहेगा। अगर मैं बुकिंग में बात करूँ तो रेट अलग होगा, और कंस्ट्रक्शन में आ गए तो उसका रेट अलग होगा। तो यहाँ ऐसा एफर्ट किया जाता है कि वो जो सामने वाला प्रोजेक्ट है वो एक स्लम का प्रोजेक्ट है, वहाँ ये 300 फुट के यूनिट डेवलपर खरीदी करेगा और अपने प्रोजेक्ट में से यूनिट वहाँ शिफ्ट करेगा। तो अपना प्रोजेक्ट है एक रेगुलर सोसाइटी प्रोजेक्ट है जो एक अच्छे स्पीड से कंस्ट्रक्ट होगा, वेयरएज वो स्लम का प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा स्लोअर कंस्ट्रक्ट होता है। एक नॉर्मल हम लोगों ने देखा है कि स्लम के प्रोजेक्ट स्लो कंस्ट्रक्शन होता है। तो उसके लिए डेवलपर को कंडीशन डाला जाता है कि आप जो प्रोजेक्ट में हमें यूनिट कंबाइन करने वाले, क्लब करने वाले, यूनिट लेने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट हमारे से कम एक 6 महीना 1 साल आगे वाला ले लो। तो क्या होगा कि जब भी ये स्टेज आएगा, अभी कौन से स्टेज पे यूनिट खरीदी करेगा। मैं एक आइडियल सिचुएशन बोल रहा हूँ, एक आइडियल सिचुएशन। हमारा प्रोजेक्ट का जब भी आईओडी प्रोसेस होता है, ये आईओडी जैसा नॉर्मल में पहले में होता था वैसा ही प्रोसेस होगा, क्योंकि उसका बेस है 2.5 FSI। तो 2.5 के लिए जो कमिश्नर के पास प्रपोजल जाना था, अपना आईओडी आना था, ये जो नॉर्मल अग्रीड प्रोसीजर है वैसा अपना एक बेसिक 2.5 के लिए कंसेशन आएगा, उसका नॉर्मल आईओडी आएगा। आईओडी आने के बाद मेंबर्स इंडिविजुअल एग्रीमेंट करेंगे, जिसको हम लोग PAAA बोलते हैं। जब भी अपने 100% PAAA होते हैं, वहाँ डेवलपर हमसे एक्सपेक्ट करता है सोसाइटी से कि हम अपना फ्लैट वेकेट करें। ये स्टेज पे डेवलपर को इंसिस्ट किया जाता है कि हम लोग देखो हमारे ऑलमोस्ट सब अभी इंडिविजुअल एग्रीमेंट हो रहे हैं, 100% इंडिविजुअल एग्रीमेंट अभी ये दिन तक कंप्लीट भी करेंगे। आप ये बेसिस पे वहाँ यूनिट्स खरीदी करो और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सोसाइटी को दे दो कि यूनिट्स हमारे प्रोजेक्ट के साथ आप कन्वर्ट करवा रहे हो। तो जब भी हम लोग हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से वेकेट करते हैं, उस टाइम तक डेवलपर जो दूसरे यूनिट्स है जहाँ हमारा PAAA के लिए जो 20P के यूनिट्स कन्वर्ट करना है, वो यूनिट्स खरीदी किया रहता है। तो हमें जो एक मन में फियर रहती है कि अरे उसने यूनिट नहीं खरीदी किया तो क्या होगा, वो मिटिगेट करने के लिए डेवलपर यूनिट्स खरीदी करता है और उसके सामने अपना यूनिट स्क्रैप करने के लिए आगे देता है। ये बेसिकली 3320B का ये प्रोसीजर रहता है। अभी यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसा उस दिन बात हो रहा था, अपने कमिटी मेंबर्स ने भी एक अच्छा एफर्ट भी लिया था कि हम लोग D से बात किया, हम लोग ने B से बात किया, NOC का भी बात करते हैं। तो अगर सब जो ऐसा भी होता है कि हम लोग आज अप्रूवल देते हैं 3320B के लिए भी अप्रूवल टॉपअप, 3320B का टॉपअप के लिए अप्रूवल दिया, कमिटी और सबने एफर्ट किया और वहां से अपना NOC आ गया। तो पहली बात यही है कि आज हम लोग जो प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं वो 33/7B का ही बेस है। वेदर आप 3320 बोलिए या अपना ओरिजिनल स्कीम बोलिए, दोनों में उसका जो बेस है वो 33/7B का ही बेस है। इन दैट केस ये डिसीजन सोसाइटी का, जनरल बॉडी का रहेगा। नहीं, हमें 20B अभी नहीं करना है, हमें पूरा NOC आ गया है, पूरा मतलब सभी जम्बोज का NOC आ गया है, और ये प्रोजेक्ट जो हम लोग पहले सोच रहे थे 6811 के ऊपर 2.5 FSI वैसे ही करते हैं। तो अगर ये आईओडी इश्यू होने के पहले अगर अचीव होता है तो हम लोग डेवलपर को ऑलवेज बोल सकते हैं कि आप इसका अमेंडमेंट डाल दीजिए। अमेंडमेंट डाल के पहले वाला प्रोजेक्ट है वैसा ही कीजिए, डेंसिटी तो और भी कम रहेगी ना, मिनिमम से मिनिमम डेंसिटी रहेगी। तो ये ऑप्शन भी हम लोग ओपन रख सकते हैं। तो आज ये ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि सिर्फ 3320B करे। हम लोग जो एक एफर्ट हो सकता है कि जिसमें से आरजी के लिए NOC भी मिल सकता है, मिल गया तो क्या होगा, तो उस दिन 20B नहीं करने का ऑप्शन आईओडी तक भी वैलिड रह सकता है। ये एक जनरल स्कीम के बारे में बड़ा एक्सप्लेनेशन था। आपके अभी क्वेश्चंस? PAAA मतलब परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट, जो हम लोग का इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनता है। मेंबर डेवलपर सोसाइटी ऐसा सोसाइटी पे उसकी सिग्नेचर रहती है, वो PAAA कुठचीही रिडेव्हलपमेंट जेव्हा सोसायटीची होते, आज तुमच्याकडे तुमच्या घराचा एक डॉक्युमेंट, थोडं मराठीत बोलतो, आज तुमच्या घराचा एक डॉक्युमेंट आहे तुमच्याकडे, तर तुमचं घर कुठचा मधला, कुठचा फ्लॅट, कुठचा नंबर, कुठचा विंग सगळं दिलेलं आहे. जेव्हा रिडेव्हलपमेंट होते तेव्हा तुमच्या घराचे सगळे पॅरामीटर बदलतात, तुमच्या घराचा एरिया बदलतो, तुमच्या घराचा नंबर, विंग सगळं बदललं, मग तुम्ही कशावरून प्रूव्ह करता की तुमचं घर आहे. म्हणून इंडिव्हिज्युअल ॲग्रीमेंट हे प्रत्येक रिडेव्हलपमेंटमध्ये
प्रत्येक मेंबर बरोबर होत असतो. प्रत्येक सोसायटी रिडेव्हलपमेंटमध्ये हे P3A इंडिव्हिज्युअल ॲग्रीमेंट होतं. हे तुमचं फ्युचर डॉक्युमेंट बनतं, तुमच्या घराचे ओनरशिप डॉक्युमेंट बनतं. सॉरी अच्छा नाही काय होतं कधी कधी बोलताना मला पटकन म्हणजे हिंदीत थोडंसं शब्द ॲप्रोप्रिएट शब्द नाही सुटला. बरोबर बोलला ते मराठीच नाही इधर थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हम लोग बहुत खुश है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इन दिस रीडेवलपमेंट वाले कॉन्वर्सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं. सो वी आर रियली वेरी हैप्पी एंड मैं और अमित नीचानी तो हम कुछ ज़्यादा ही खुश है बिकॉज अमित जैन जो को फाउंडर है या जो ओनर है हम उन्हीं के स्कूल से हैं. तो सेंट जेवियर्स विलेपार्ले स्कूल जो है हम भी वही स्कूल में थे. सो वी आर इवन मोर हैप्पी. कमिंग टू व्हाट you said, Mr. PMC. First of all, good to know things are okay at your end. Thank you. Okay. First of all, जो सर आपने अभी जो हम लोगों को वर्बली बताया, आइडली आई वुड हैव अप्रिशिएटेड अगर आप ये PPT पॉइंट में हमको दिखा सकते थे, so that when it comes to area, I mean every time we are referring back to 6,800 है, 11 है, क्या है. So I think going forward it will be very helpful if you can make some sort of a presentation and draw a complete diagram with the clarity कि exactly कितना square meters का discussion कर रहे हैं, क्या discussion होना है, या फिर ये जो भी comparison आया है वो क्या exactly in terms of numbers क्या है. Because आप जो भी चीज़ बोल रहे हो I think majority of them मेरे भी समझ में नहीं आता है. So I think it will give us more insight. सेकेंड इज जैसे देसाई सर ने बताया वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू 3311 बट आई थिंक ये जो कंपैरिजन आया है आर्केड से इट डज से दैट इट इज गोइंग टू बी 33.7B एंड 3311/3320B /AH and RR. So what is that? I mean, can you give me more clarity on what exactly is 3311, 3320B and what does this AH and RR means? क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करे चलेगा. Perfect. ओके सो अभी 3320B मैंने आपको एक्सप्लेन किया. और 3320B जैसा 33.9 को CDS एक रेगुलेशन 33.9 उसको बोलते हैं CDS क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम. वैसा 3320B जो है उसका नाम है AH and RNR. Okay. तो But that is अफोर्डेबल हाउसिंग रीसेटलमेंट एंड it also says that deemed or seized housing 3320B. No? ठीक. That's a different regulation. 3320B स्पेसिफिकली ये अभी ये 3320B जैसा मैंने एक को एक्सप्लेन किया कि नीचे 33.7B का बेस लेके उसके ऊपर टॉपअप जैसा काम करता है. उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसका मैक्सिमम सीलिंग जो है मैक्सिमम FSI का लिमिट है दैट इज 4. बट यहाँ ये कंपलसरी नहीं है कि आपको 4 ही करना है. सो जैसा एक बात रिपीटेडली अपना है कि एक अच्छी सोसाइटी है यहाँ बहुत ज़्यादा टेंस नहीं करना है, जितना लिमिटेड जरूरत है उतना ही करना है. तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये 3320B भी देता है कि 2.5 FSI 35% फंजिबल. ये इस सबसे बेसिक कैलकुलेशन किया और जितना एक अपना अर्जी के लिए एडिशनल देना है उतने तक ही लिमिटेड 3320B के यूनिट्स लिए. ये टाइप का कैलकुलेशन 3320B में पॉसिबल होता है. अभी 3320B और 3311 ये स्कीम्स बहुत क्लोज चलती है. दोनों में से एक मेजर डिफरेंस है 3320B ये BMC के अंडर आता है तो उसका अप्रूवल BMC से होता है और सब कुछ BMC ही करवाती है. Whereas 3311 ये प्योरली SRA स्कीम है. 3311 परमानेंट ट्रांजिट कैंप PTC ये प्योरली SRA स्कीम है जहाँ ठीक है ये सेल कंपोनेंट होने के वजह से तो टिपिकली ब्लू और रेड इस तरह का नाम बिल्डिंग के बाहर लिखा जाता है, वैसा यहाँ नहीं लिखा जाता. बट अप्रूवल जो देखेंगे आप जैसा अपना जो IOD है जिसके ऊपर BMC का ठप्पा है 3311 में वो SRA का ठप्पा लगता है. उसके भी नॉर्म सिमिलर है 1 FSI प्लॉट का और जो एडिशनल 4 FSI तक जा सकते हैं 1.5 FSI इन फॉर्म ऑफ PTC 1.5 FSI इन फॉर्म ऑफ इंसेंटिव. तो PTC मतलब क्या कि 300 फुट के यूनिट जैसे हम लोग
3320 में बात करते हैं वैसे ये भी 300 फुट के यूनिट है। अभी दोनों में मेजर फर्क क्या है? जैसा 3320 में बात करते हैं 2.5 FSI हम लोग ने TDR से सिक्योर किया, तो आज अगर मुझे एज अ सोसाइटी मेरे बारे में सोचना है, मेरी सेफ्टी सोचनी है, तो मैं ऑलवेज सोचूंगा कि पहला एक मैं कोलते पाटिल का एग्जांपल है, जस्ट रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, समझने के लिए दे रहा हूँ। केपीडी के टाइम पे हम लोग FSI के लिए उनके साथ झगड़ रहे थे, आप कितना FSI लोड करोगे, हमारे घर कैसा सिक्योर करोगे, और 1.5 1.75 ऐसे बहुत सारे अपने नंबर की बात हो रही थी। तो जब ये 2.5 FSI यहाँ है, डेवलपर एडिशनल यूनिट्स 20B के लेने के पहले 2.5 FSI पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में लेता है। अगर डेवलपर ने 2.5 FSI पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में लिया, तो एज अ सोसाइटी हमारे सब घर उसमें कवर हो गए, प्लस सेल के भी फ्लैट एक जितने हैं उतने सेल के भी कुछ फ्लैट कवर हो गए। तो एज अ मेंबर, एज अ सोसाइटी पहले ही अप्रूवल में जहाँ डेवलपर बेसिक अप्रूवल ले रहा है और उसके आगे जाके टॉपअप करवा रहा है TDR को, तो सोसाइटी का और सेल का कंपोनेंट पूरा 2.5 कवर हुआ, उसके आगे जाके वो 20B यूटिलाइज करवा रहा है। वेयरएज 3311 में 1 FSI बेस है और जितने PTC यूनिट आप क्लब करवाते हो उसके साथ में आपका प्रोजेक्ट मर्ज होके सेल का कंपोनेंट दिया जाता है। यहाँ So when you सोसाइटी say- का कंपोनेंट के ऊपर 3311 में भी सोसाइटी का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, डेवलपर के सेल कंपोनेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आता है कि जब तक ये PTC आप ये प्रोजेक्ट में से क्लब करवा के कंप्लीट करवा के हैंडओवर नहीं करते हैं, तब तक आपका सेल कंपोनेंट प्रोपोर्शनेट आप बेच नहीं सकते हो। लेकिन दोनों में जो मेजर फर्क है कि 1.5 FSI के ऊपर अगर वर्किंग कर दिए 6000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऊपर, तो नंबर ऑफ यूनिट बहुत ज्यादा लगते हैं। Whereas ये हम लोग जो 3320B है वो 2.5 के ऊपर एक थोड़ा सा ही FSI का बात टॉपअप का है, आधा बात है वापस उसमें, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम लगते हैं, यूनिट मिलने की अवेलेबिलिटी फंक्शनिंग ये इजी हो जाता है। ये दोनों में फर्क है। So when you say 3311 PTC,